Assalamu alaikum students. Welcome to the course Network Security. Today we will be studying network layer security. Network layer is the third layer of OSI model. इससे पहले हमने दो layers पढ़े, the physical layer security that is layer 1 और data link layer security that is layer 2. Now we will be studying about the third layer of OSI and associated security attacks and countermeasures. ये नेटवर्क लेयर जो है ये डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक रूट करता है. These are the contents of our today's lecture. First, we will understand about the network layer, the core functionalities and critical role of network layer in data routing. Then we will discuss some common network layer attacks. These attacks are DDoS, IP spoofing, ICMP attacks, and routing exploits. After that, we will look into the attack mechanisms and impact, like how the attackers exploit the vulnerabilities of network layer. After that, then we have the countermeasures, the defense mechanisms against the discussed attacks, and at the end we will discuss the best security practices. So the network layer. Network layer is the foundation of data routing. This is OSI layer 3. It serves as the backbone of internetwork communication, like between two networks. If there is any sort of communication, then the core responsible layer is the network layer. So it is responsible for packet routing, the logical addressing through IP protocol, and traffic control across diverse network topologies. नेटवर्क लेयर का मेन जो काम है वो है राउटिंग का. राउटिंग के लिए इसको लॉजिकल एड्रेसेस की ज़रूरत होती है, जिसको हम आईपी एड्रेस के साथ करते हैं. आईपी एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा था. तो ये आईपी एड्रेस जो है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एड्रेसेस जो हैं ये नेटवर्क लेयर पे होते हैं. सो दी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर पैकेट राउटिंग, logical addressing, and traffic control. In the packet routing, the network layer determines the best paths for data transmission between the source and destination. सोर्स वो नोड होता है जिसने डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, डेस्टिनेशन वो नोड होता है जिसने अल्टीमेटली डेटा रिसीव करना होता है. सो दोनों के दरमियान में जो पाथ बनता है जिसके थ्रू ये डेटा ट्रैवल होता है वो नेटवर्क लेयर की मदद से होता है. लॉजिकल एड्रेसिंग assign and manages IP addresses to uniquely identify devices on interconnected networks. नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेसेस होती हैं. तो नेटवर्क लेयर पे जो हेडर बनता है उसमें सोर्स का IP एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस भी होता है. इन्हीं IP एड्रेसेस की मदद से जो नोड्स होते हैं उनकी आइडेंटिटीज़ का पता चलता है कि कहाँ से पैकेट आया और कहाँ पैकेट ने जाना है. ट्रैफिक कंट्रोल, इट कंट्रोल्स द कंजेशन, गिव प्रायोरिटीज़ टू पैकेट्स and ensures efficient data flow. ये काम सारा जो है राउटिंग में आता है. तो राउटिंग जब ठीक हो तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी ऑप्टिमाइज्ड होता है. So why layer 3 is a critical attack surface?
First thing is universal accessibility. Second is protocol vulnerabilities. And third is wide impact radius. Layer 3 is one of the most critical attack surface in cyber security. ये लेयर पूरी नेटवर्क कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है, इसलिए अटैकर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव टारगेट है ये. The first one, universal accessibility. Layer 3 is accessible across all networks because it uses IP addressing. हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका IP एड्रेस होता है. सो दिस मेक्स इट ग्लोबली रीचेबल, यानी जब उसका IP एड्रेस हो तो अटैकर दुनिया से कहीं पे भी हो तो वो उसको IP एड्रेस की मदद से एक्सेस कर सकता है. नंबर 2, protocol vulnerabilities. The core protocols like IP, ICMP, and other routing protocols were not originally designed with strong security. They were designed for having some sort of data transmission only, and there was no security aspects. इन प्रोटोकॉल्स में बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं होती. ये ऐसे डिज़ाइन हुए हैं कि इनमें सिक्योरिटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये वल्नरेबल हैं, ये इनकी वीकनेसेस हैं. इनमें सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं. अगर सिक्योरिटी अटैक्स आ गई तो इनमें अपना कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. अब IP है तो दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल. नो ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट, सोर्स वेरीफाई नहीं होता, इसलिए इसमें स्पूफिंग पॉसिबल है, फेक IP इसमें पॉसिबल है. ICMP यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक्स बट कैन बी एब्यूज्ड. पिंग हम यूज़ करते हैं, सो पिंग फ्लड जैसे अटैक्स में मिसयूज़ हो सकता है ये. फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल OSPF है, BGP है, कैन बी मैनिपुलेटेड टू रीडायरेक्ट ट्रैफिक. तो इसमें ये है कि ट्रैफिक को अटैकर्स के पास डाइवर्ट किया जा सकता है. थर्ड इज़ वाइड इम्पैक्ट रेडियस. Attackers at layer 3 can affect entire network, not just the single device. अगर राउटिंग या IP लेवल पे अटैक हो तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल DDoS अटैक्स एंड राउटिंग अटैक्स. अब DDoS अटैक्स जो हैं ये लार्ज स्केल अटैक्स होते हैं और इसकी वजह से अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, और ये अटैक्स जो हैं लार्ज स्केल में आउटेजेस काज कर सकते हैं. बिकॉज लेयर 3 कंट्रोल्स राउटिंग एंड कम्युनिकेशन, एनी कंप्रोमाइज हैज़ ए कास्केडिंग इफेक्ट. यानी एक अटैक मल्टीपल सिस्टम्स को इफ़ेक्ट कर सकता है. अब अगर बात कर लें तो ग्लोबल एक्सेस प्लस वीक प्रोटोकॉल्स प्लस लार्ज इम्पैक्ट, ये सब मिला के हमें हाई रिस्क अटैक सरफेस देते हैं. इसलिए लेयर 3 सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है. अटैक लैंडस्केप, नेटवर्क लेयर threats overview. This slide gives an overview of major network layer attacks. ये attacks mainly bandwidth protocol और routing को target करते हैं. So the first one is volumetric attacks. These attacks overwhelm network bandwidth with massive traffic. इसमें इस तरह होता है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है कि नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकता. अटैकर्स
फेक तरीके से, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स भेजते हैं नेटवर्क को, तो वो फिर इतने ज़्यादा होते हैं कि हैंडल नहीं होते। हमारे पास इसमें एग्जांपल्स हैं यूडीपी फ्लडिंग, आईसीएमपी फ्लडिंग और एम्प्लीफिकेशन अटैक्स। फर्स्ट, यूडीपी फ्लड। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। It sends large number of packets to random ports. तो सिस्टम रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेट्स भेजे जाते हैं और ये रैंडम पोर्ट्स को, क्योंकि यूडीपी में टीसीपी और यूडीपी जो हैं इनमें पोर्ट नंबर होता है, तो बस अपनी मर्ज़ी से इसी तरह किसी भी पोर्ट पे ये भेजा जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा कंजेशन आ जाती है और नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाता है। ICMP floods. ICMP stands for Internet Control Message Protocol. It uses ping requests to overload system. ICMP आमतौर पे हम पिंग जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए होता है। तो ये इतने ज़्यादा पिंग्स भेजे जाते हैं, किसी एक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा पिंग्स भेजे जाते हैं, तो उसकी वजह से सर्वर स्लो या क्रैश हो जाता है। Amplification attacks. Attackers send small request, gets large response. तो ट्रैफिक मल्टीप्लाई होकर विक्टिम को हिट करता है, यानी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसके अगेंस्ट जो है कोई लार्ज रिस्पांस जो है गैदर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, उस पर बैकअप्स पड़े हुए हैं लार्ज साइज़ के, तो अब अगर मल्टीपल यूज़र्स वो बैकअप्स एक ही वक्त पे डाउनलोड करना शुरू कर लें, तो उसकी वजह से जो सर्वर है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटोकॉल अटैक्स। दीज एक्सप्लॉइट वीकनेसेस इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स की डिज़ाइन फ्लॉज का फ़ायदा उठाते हुए जो अटैकर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स करते हैं इस पर। पहले हमारे पास है SYN फ्लड। SYN स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनाइज, जो TCP हैंडशेक का फर्स्ट स्टेप है। TCP हैंडशेक का हमने पढ़ा था, 3-वे हैंडशेक होता है उसमें, तो उसमें SYN जो फ्लैग है वो सेंड किया जाता है। SYN की मदद से दो सिस्टम्स जो हैं आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सो हाफ ओपन कनेक्शंस क्रिएट करके सर्वर को बिज़ी रखा जाता है इसमें, यानी जो अटैकर है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ। जब सर्वर उसको जवाब देता है तो अटैकर फिर उसके बाद उसको फिर फर्दर जवाब नहीं देता और सर्वर जो है उसकी वेट में रहता है। पिंग ऑफ डेथ। ओवरसाइज्ड ICMP पैकेट्स सेंड करता है। सिस्टम क्रैश या माल फंक्शन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट इज़ IP फ्रेगमेंटेशन। पैकेट्स को फ्रेगमेंट्स में तोड़कर कंफ्यूज करता है सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास पैकेट्स होते हैं उनकी ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन होती है, तो ये रैंडम फ्रेगमेंटेशन या गलत फ्रेगमेंटेशन करके सर्वर को कंफ्यूज किया जाता है इसमें। तो उसमें ये होता है कि जब फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करना होता है तो उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन होती नहीं है, गलत होती है, तो उसकी वजह से रीअसेंबली में जो सर्वर है वो हैंग हो जाता है या क्रैश कर जाता है। नेक्स्ट है राउटिंग अटैक्स। दीज अटैक्स मैनिपुलेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ट्रैफिक का पाथ चेंज कर दिया जाता है इसमें। Here we have the BGP hijacking.
BGP स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ट्रैफिक को मलिशियस रूट पर रीडायरेक्ट करता है। ये एक रॉन्ग रूट जो है वो बताया जाता है ट्रैफिक को कि ये रूट ठीक है, असल में उस रूट में अटैकर पड़ा होता है। तो अटैकर जो है वो डेटा को फिर रीड कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से डेटा इंटरसेप्ट हो सकता है। रूट पॉइजनिंग, फॉल्स राउटिंग इन्फो इंजेक्ट की जाती है इसमें। ये भी सेम ही है, जो रूट्स हैं वो गलत बताए जाते हैं। तो राउटिंग टेबल होता है राउटर पे, उसमें गलत एंट्रीज़ हो जाती हैं। तो इसकी वजह से नेटवर्क इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। लास्ट वन इज़ RIP स्पूफिंग। RIP स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसमें फेक राउटिंग अपडेट्स बेचकर रूट चेंज किया जाता है। तो ये सारे राउटिंग से रिलेटेड हैं। दी मॉडर्न अटैक्स कंबाइन मल्टीपल टेक्निक्स टुगेदर। आजकल जितने अटैक्स हैं इनमें यानी एक अटैक नहीं होता, वो अटैक्स जो हैं दे आर एक्चुअली सेट ऑफ मल्टीपल टेक्निक्स। सो दिस रिक्वायर्स मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी। सिर्फ एक डिफेंस इसके लिए इनफ नहीं होता, बल्कि मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर्स करने होते हैं। तो पहला हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक है, ये बैंडविड्थ को एग्जॉस्ट करता है। प्रोटोकॉल अटैक्स जो हैं दे एक्सप्लॉइट वीकनेसेस, और राउटिंग अटैक्स जो हैं दे मैनिपुलेट दी ट्रैफिक। अच्छा, पहला अटैक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। व्हाट हैपन्स इन DOS अटैक्स? These attacks are used to prevent the system from processing or responding to legitimate traffic or requests. यानी जो टीक यूज़र्स हैं, जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं, वो जब किसी सिस्टम को रिक्वेस्ट करें और सिस्टम जो है उनके लिए अवेलेबल ना हो, वो सिस्टम किसी अटैक की वजह से डाउन हो या बिज़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट जो है सर्विसेज दे रहा है और यूज़र्स जो हैं उसको एक्सेस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो DOS अटैक जो है वो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। DOS अटैक में क्या होता है? दी अटैकर्स ट्रांसमिट so many data packets to a server that it cannot process all at the same time. अटैकर्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स भेजते हैं सर्वर को। इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट्स होते हैं कि सर्वर हैंग हो जाता है उसका रिस्पॉन्स देने में। यानी अटैकर क्या करता है, एक सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, उसको बॉट कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा पैकेट्स सेंड करना शुरू कर लेता है किसी टारगेट सर्वर को। रिक्वेस्ट्स होते हैं, सिंक्रोनाइज पैकेट भी हो सकते हैं, इसके अलावा और सर्विस के रिक्वेस्ट्स हो सकते हैं। तो जो टारगेट सर्वर है वो इस अटैकर के साथ बिज़ी हो जाता है, इसको रिस्पॉन्ड देने में शुरू हो जाता है। वो इतने ज़्यादा होते हैं कि जो सर्वर है वो बाकी यूज़र्स को जवाब नहीं दे सकता उस टाइम में। तो इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का गोल होता है कि सिस्टम को इतना ओवरलोड किया जाए कि अनअवेलेबल हो। बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें जो अटैक का नेचर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल बॉट्स जो हैं वो एक ही वक्त पे जो टारगेट विक्टिम होता है, जो सर्वर होता है, उसको
रिक्वेस्ट्स भेजना शुरू कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स से सर्वर को टारगेट किया जाता है। Compromises several systems and use them as launching platforms against one or more victims. So the compromised systems used in the attacks are often called as slave or zombies. So these bots are also known as zombies or slaves. So a DDoS attack results in the victims being flooded with data from numberless sources. बहुत ज़्यादा सोर्सेज से अटैक किया जाता है। यहाँ पे 3 हैं, ये 300 बॉट्स भी हो सकते हैं, 3000 बॉट्स भी हो सकते हैं। आमतौर पे अटैकर क्या करता है, कोई मिलीशियस स्क्रिप्ट भेजता है, तो यूज़र्स को पता नहीं होता, वो क्लिक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो वो स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाता है उनके सिस्टम पे। तो उनके सिस्टम्स में बैकग्राउंड में ये अटैक्स शुरू हो जाते हैं। सरफेस पे उनको पता नहीं चलता कि उनके सिस्टम से अटैक्स हो रहे हैं। तो ये कंप्रोमाइज्ड सिस्टम्स होते हैं। So these types of attacks are labeled as distributed because many systems are involved in the propagation of requests against the victim. Like they send lots of requests to the victim server at the same time. So the DDoS uses botnets, large networks of compromised devices. Like these can be in hundreds and thousands. बॉट्स होते हैं, zombies भी कहते हैं, slaves भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं कंप्रोमाइज्ड होते हैं और अटैकर के अंडर काम करते हैं। बॉटनेट का मतलब इन्फेक्टेड कंप्यूटर या इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप, यानी एक नेटवर्क है जिसमें सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स हैं जो अटैकर के कंट्रोल में होते हैं। सो दीज डिवाइसेस सेंड मासिव ट्रैफिक साइमल्टेनियसली। ये एक ही टाइम पर हज़ारों डिवाइसेस विक्टिम को रिक्वेस्ट भेजता है। Now if you look into the key stats, these are gathered from some sources. 100,000 plus devices in botnet, यानी अटैक बहुत लार्ज स्केल का हो सकता है, यानी 1 लाख तक बॉट्स भी हो सकते हैं इसमें। और ये 1 टेराबिट्स पर सेकंड ट्रैफिक के साथ भी काम कर सकते हैं। और जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 2.3 मिलियन। ये बिजनेस के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये एक एवरेज कॉस्ट है अराउंड द ग्लोब। Then we have common network layer DDoS types. The first one is ICMP, Internet Control Message Protocol. Massive ping requests overwhelm CPU and bandwidth. सिस्टम स्लो या क्रैश हो जाता है इसमें। Smurf attack uses broadcast addresses with spoofed IP. एक रिक्वेस्ट मल्टीपल रिस्पॉन्सेज जनरेट करती है। दिस इज़ एक्चुअली एम्प्लीफिकेशन। IP fragmentation breaks packets into malformed fragments, यानी जो फ्रैगमेंट्स बनाए जाते हैं वो प्रॉपर फ्रैगमेंट्स नहीं होते, वो गलत बनाए जाते हैं। तो सिस्टम जो है रीअसेंबली में कंफ्यूज हो जाता है और उसकी वजह से सिस्टम हैंग हो जाता है। DNS एम्प्लीफिकेशन, DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो इसमें ये होता है कि स्मॉल रिक्वेस्ट भेजा जाता है और उसके अगेंस्ट लार्ज रिस्पॉन्सेज आते हैं।
तो ट्रैफिक मल्टीप्लाई होकर विक्टिम को हिट करता है। अटैक इम्पैक्ट टाइमलाइन। स्टेज 1, the initial surge, that is from 0 to 30 seconds. Traffic suddenly spikes. Routers और firewall overwhelm हो जाते हैं इसमें। Stage 2, 30 seconds to 5 minutes. Connection tables fill up. Legitimate users connect नहीं कर पाते इसमें। Stage 3, service degradation. It takes 5 to 30 minutes. एप्लीकेशंस स्लो डाउन हो जाते हैं और टाइम आउट हो जाते हैं, सो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है इसमें। स्टेज 4, सर्विसेज बिकम अनअवेलेबल, सिस्टम्स कंप्लीटली डाउन हो जाता है। सो एवरेज डाउन टाइम इज़ अराउंड 4 to 8 आवर्स। ये बिज़नेस कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही सीरियस इशू है। तो हम कह सकते हैं कि DDoS अटैक्स, दीज आर इक्वल टू हाई वॉल्यूम प्लस मल्टीपल सोर्सेज प्लस सोर्स एग्जॉशन। ये अटैक्स नेटवर्क को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर देते हैं, यानी नेटवर्क काम करना छोड़ देता है मुकम्मल। दिस स्लाइड फोकसेस ऑन 2 मेजर लेयर 3 अटैक्स। These are IP spoofing and ICMP based attacks. First, IP spoofing. IP spoofing means forging the IP address in the packet. यानी जो IP एड्रेस है, particularly the source IP address, ये फेक बनाई जाती है इसमें। अटैकर अपनी असली आइडेंटिटी हाइड करता है इसमें और फेक आईपी यूज़ करता है। सो दिस हेल्प्स बाईपास ऑथेंटिकेशन एंड इम्पर्सोनेट ट्रस्टेड सिस्टम्स। तो फेक आईपी लगा के, जो अटैकर है फेक आईपी लगा के वो एक ट्रस्टेड सिस्टम बनकर बाकी सिस्टम्स को प्रिटेंड करता है कि वो एक ट्रस्टेड है और उस हिसाब से वो अटैक करता है। सो वी हैव ब्लाइंड स्पूफिंग, नॉन ब्लाइंड स्पूफिंग एंड मैन इन द मिडल। ब्लाइंड स्पूफिंग, अटैकर सेंड्स पैकेट्स विदाउट सीइंग रिस्पॉन्सेस। फीडबैक के बिना अटैकर अटैक करता है। ये आमतौर पे डॉस अटैक के लिए होता है। नॉन ब्लाइंड स्पूफिंग, अटैकर कैन सी रिस्पॉन्सेस। इसमें सेशन हाईजैकिंग पॉसिबल होती है। थर्ड, मैन इन द मिडल, अटैकर इंटरसेप्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज़। तो जो अटैकर है वो डेटा को रीड या मॉडिफाई भी कर सकता है इसमें, क्योंकि अटैकर जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के दरमियान में होता है, उस पर डेटा गुज़रता है। नेक्स्ट, दी ICMP अटैक्स, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल अटैक्स, यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक्स लाइक पिंग, बट दिस ICMP कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ICMP का नॉर्मल यूज़ ट्रबल शूटिंग के लिए होता है। हम कनेक्टिविटी वगैरह चेक करते हैं पिंग की मदद से, लेकिन अटैकर्स जो हैं इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो पहला इसमें आता है पिंग फ्लड, सेंड्स मासिव ICMP इको रिक्वेस्ट्स। तो इसकी वजह से जो बैंडविड्थ है और CPU है ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंग होते हैं। स्मर्फ
attack uses broadcast address with spoofed IP. एक रिक्वेस्ट से मल्टीपल जनरेट होते हैं इसमें. It's a kind of amplification. Last one is ping of death. Sends oversized ICMP packets. तो पिंग जो हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है इसमें, तो उसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो जाता है या सिस्टम में जो बफ़र्स होते हैं वो फुल हो जाते हैं, यानी बफ़र ओवरफ्लो हो जाता है वहाँ पे. तो अगर डिफेंस इनसाइड की बात कर लें, हमारे पास एनग्रेस है, एग्रेस है, फिल्टरिंग RFC 2827, प्रिवेंट स्पूफ्ड ट्रैफिक, फेक IP पैकेट्स को नेटवर्क एज पर ही ब्लॉक कर दिया जाता है इसमें, डिसेबल डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट्स टू स्टॉप एम्प्लीफिकेशन अटैक्स. तो जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट्स होते हैं उनको भी डिसेबल किया जाता है इसमें. स्मर्फ जैसे अटैक्स प्रिवेंट हो जाते हैं उसकी वजह से. So IP spoofing hides attacker identity. ICMP attacks overwhelm और crash systems. दोनों मिलकर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट्स हैं. Okay students, we reached at the end of part 1 of this lecture. So if you have any question, you can contact me through my email. Thank you for watching and see you in the next lecture, that is part 2 of this lecture. Allah Hafiz.